पाकिस्तान से बातचीत रद्द कर दी है। आपको बता दें कि लगातार भारत की ओर से यह साफ किया गया कि अलगाववादियों से किसी भी हाल में पाकिस्तान बातचीत ना करे, लेकिन पाकिस्तान की ओर से लगातार इस बात को लेकर हामी जताई जाती रही, जिसके बाद भारत ने आखिरकार निर्णय ले लिया है और एनएसए लेवल की जो बातचीत शुरू होने वाली थी 24 तारीख को, माना यह जा रहा था कि दोनों ही पक्षों के लोग आमने सामने बैठेंगे, लेकिन भारत ने Earlier in the day, Pakistan has issued a statement. I am now going to read out our response to that statement. The statement by the government of Pakistan today on the NSA level talks with India does not come as a surprise. There has been a pattern to Pakistan's actions after the UFA summit, and today's position is a culmination of that approach. At UFA, the two prime ministers agreed on a meeting of the NSAs to discuss a pattern to Pakistan's actions after the UFA summit, and today's position is a culmination of that approach. At UFA, the two prime ministers agreed on a meeting of the NSAs to discuss all issues connected to terrorism, as well as ensure peace and tranquility on the border. Instead, we saw a sharp increase in the unprovoked firings from the Pakistani side and some serious cross-border terrorist incidents. The last one, at Udhampur, resulted in the capture alive of a Pakistani national, a matter that would have naturally come up in the NSA level talks on terrorism to Pakistan's discomfort. Insofar as those talks are concerned, Pakistan took 22 days to respond to the Indian proposal to meet in New Delhi. It then proposed an agenda that was at variance completely with what the two prime ministers had agreed upon in UFA. Together, these two actions indicated its reluctance to go forward with sincerity on the agreed process. Even more significantly, without confirming either the program or the agenda, the Pakistani High Commissioner invited Hurriyat representatives to consult with the visiting NSA. This provocative action was completely in consonance with Pakistan's desire to evade its commitment at UFA to engage in a substantive discussion on terrorism. The UFA understanding on the talks, read out jointly by the two foreign secretaries, was very clear. The NSAs were to meet to discuss all issues connected to terrorism. This was the only agenda set for them by the two prime ministers. The insistence on meeting Hurriyat as a precondition is also a complete departure from the UFA understanding. India has always held the position that there are only two stakeholders in our relationship, not three. The people of both countries can legitimately ask today, what is the force that compels Pakistan to disregard the agreements reached by two elected leaders and sabotage their implementation? मणिशंकर अय्यर साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मणिशंकर साहब, बार बार ये सवाल खड़े हो रहे थे कि इस माहौल में पाकिस्तान के साथ बातचीत क्यों? अब भारत की ओर से यह कदम उठाते हुए बातचीत रद्द कर दी गई है। आपकी टिप्पणी इस पर? मुझको कोई आश्चर्य नहीं है कि बातचीत रद्द कर गई है, क्योंकि उफा में बिना कोई तैयारी ये शिखर सम्मेलन हुआ जी, और कूटनीति में बिना तैयारी शिखर सम्मेलन होते नहीं है। और यदि हमने सोचा कि हमने नवाज शरीफ को धोखा देकर उनको यहाँ लाएंगे मात्र आतंकवाद के बारे में बात करने की, तो हम गलत फहमी में थे। और हमें हमेशा पता था कि 1997 के पश्चात हमारी सबसे बड़ी कामयाबी ये रही है कि जहाँ की पाकिस्तान कहता था कि हम मात्र कश्मीर पर बात करेंगे और हम कहते थे कि सब विषयों पर बात हो, कि उस पथ को छोड़कर हम पाकिस्तानियों जैसे कहने लगे कि हम मात्र आतंकवादी पर बात करेंगे जी। और उफा में ही पता लग गया था कि पाकिस्तान इसको मानेगा नहीं। तो बिना इस हकीकत को सामने जो हमारे सामने था उसको देखने का हम उम्मीद रखें कि वो आएंगे और कि कुछ रचनात्मक बात होगी, वो मेरी अपेक्षा नहीं थी। और इसलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि ये बात रद्द हो गई है। मैं आज सुबह से टीवी चैनल्स को बता रहा हूँ कि
मुझको नहीं लगता है कि ये वार्तालाप होने वाली हो। और जी बिल्कुल पीछे हम हट गए हैं, और जहां की हमें जाना था, जबकि नरेंद्र मोदी ने तय किया 27 मई 2014 को कि हमारी आपसी मुज़ाकरात होगी, और फिर उन्होंने खुद इसको बंद किया अगस्त महीने में सन 2014। बिल्कुल। और अब लगता है कि अगस्त महीने में हमें कोई कदम नहीं उठाने चाहिए, क्योंकि बिना तैयारी शिखर सम्मेलन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। पिछले साल भी इसी अगस्त महीने में जब सचिव स्तरीय बातचीत होनी थी, उसको रद्द कर दिया था भारत सरकार ने, और एक बार फिर से अब एनएसए लेवल की जो टॉक होने वाली थी उसको रद्द कर दिया गया है भारत की ओर से। मणिशंकर जी, मैं चाहूंगी आप फोन लाइन पर हमारे साथ बने रहें। शीतल राजपूत इस वक्त मेरी कार्यकारी संपादक जुड़ चुकी हैं। शीतल, एक बड़ा कदम भारत सरकार की ओर से। हाँ बिल्कुल चित्रा, मुझे लगता है कि भारत ने बिल्कुल सही फैसला किया है। और जहां तक बात मणिशंकर अय्यर की थी कि कभी भी पाकिस्तान कश्मीर के बगैर बातचीत नहीं कर सकता है, तो मुझे लगता है कि उन्हें गौर करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि उफा में जो डिक्लेरेशन हुआ था उसमें पाकिस्तान ने स्पष्ट कहा था कि वो केवल और केवल आतंकवाद के मसले पर एनएसए की बातचीत करेगा। कश्मीर का कहीं जिक्र नहीं था। तो अगर पाकिस्तान ने कश्मीर को घुसाने की कोशिश की है तो इसमें गलती पाकिस्तान की है, भारत की नहीं है। और मुझे लगता है कि भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं था इसके सिवाय कि इस बातचीत को रद्द किया जाए। चित्रा, मणिशंकर जी, आप भी इस बात को मानेंगे और इससे इत्तेफाक रखेंगे कि दरअसल भारत के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, इस वजह से ये कदम उठाया भारत ने? मणिशंकर साहब, सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? नहीं, जबकि वो यहाँ आने को तैयार नहीं है तो हम कहाँ वहां जाएं उनसे मिलने के लिए? जी, ये सारा मामला गलत रहा है पिछले अगस्त महीने से। 1 साल से हम इस तनाव को भुगत रहे हैं, और जो कदम उठाने हैं तनाव को कम करके बातचीत शुरू करने के लिए, वो सही मायने में नहीं लिए जा रहे हैं। मोदी जी सोचते हैं कि वो बड़े विशेषज्ञ बन गए हैं कूटनीति में, लेकिन इससे साफ जाहिर है कि कूटनीति के बारे में उनका ज्ञान बहुत ही कम है, और कि फॉरेन ऑफिस को एक तरफ रखकर, फॉरेन मिनिस्टर को एक तरफ रखकर मात्र एक पुलिस अफसर के साथ पाकिस्तान के साथ रिश्ता बनाना, ये बुनियादी तौर पर गलत तरीका है। जी, शीतल आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रही हूँ। मैं मणिशंकर जी से ये पूछना चाहती हूँ कि उनकी पार्टी राष्ट्र के मसलों पर राजनीति क्यों करती है? क्या वो इस बात को अप्रिशिएट नहीं करते हैं कि उफा में जो समझौता हुआ उसमें कश्मीर का कहीं जिक्र नहीं था? अब अगर पाकिस्तान पीछे हटता है, जो कि उसकी आदत रही है और ये उनकी सरकारों में भी हुआ है, तो वो इस बात को क्यों नहीं कबूल करते कि हाँ गलती पाकिस्तान की है, ना कि भारत की कूटनीति की? मेरे ख्याल से वो जवाब नहीं देना चाहेंगे मेरे सवाल का। आप मुझसे पूछ रहे हो या उनसे पूछ रहे हो? मणिशंकर साहब, आपसे शीतल राजपूत ने ये सवाल किया है। हाँ, क्या सवाल किया है? शीतल, दोहराएं एक बार। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कह रहे हैं कि हमारी विदेश नीति फ्लॉप हो गई, हमने ठीक से इसको प्लान आउट नहीं किया, लेकिन क्या जो उफा में डिक्लेरेशन हुआ था वो भारत की कूटनीतिक जीत नहीं थी, जहां कश्मीर का कहीं जिक्र नहीं था और सिर्फ आतंक के मसले पर बात होनी थी? अब अगर पाकिस्तान बैकआउट करता है तो आप हमारी सरकार को क्यों दोषारोपण करते हैं? इसमें तो पाकिस्तान की नीयत है। अच्छा, आपका सवाल हो गया है? जी, हो गया। सवाल इतने लंबे होते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता कि क्या जवाब दें। आप जरा संक्षिप्त में पूछिएगा। अब मैं जवाब ये दे रहा हूं और फिर मुझे लाइन में बना रहना मुश्किल होगा। ये मैं कह रहा हूं कि उफा में जो डिक्लेरेशन हुआ उसी समय मैंने कहा कि ये कामयाब नहीं होने वाला है, क्योंकि कोई तैयारी नहीं हुई थी, और इसलिए जल्दबाजी में 2-4 पंक्तियां लिखे गए थे, और हमने कोशिश किया ये दिखाने के लिए कि हमारी बड़ी कामयाबी हुई है। यदि आप कहें कि हमारी बड़ी कामयाबी हो रही है तो दूसरे तरफ से इत्तेफाक नहीं रहेंगे, और इसलिए कूटनीति में हम आगे बढ़ते हैं, जबकि कोई ये नहीं कहता है कि हमारी जीत है या दूसरों का हार हुआ है। ये सब समझने वाली बात है, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सबक जो हमें सीखना है इससे वो ये है कि फॉरेन ऑफिस को, जो हमारे विशेषज्ञ हैं फॉरेन सर्विस के, उनको एक तरफ करके कूटनीति चलाना बिल्कुल गलत बात है, और उनको शामिल करवाकर और उस आधार पर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। चित्रा, मैं यहाँ पे कुछ जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि शायद मणिशंकर जी अब हमारे साथ नहीं होंगे इस जवाब के बाद। मैं ये कहना चाहूंगी कि अब उन्होंने थोड़ा टोन डाउन भी किया है अपने लहजे को, अगर आपने नोटिस किया होगा कि किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर अगर हम
गलती या भूल की बात कहें तो वो सरासर पाकिस्तान की है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई डिक्लेरेशन तैयार करें जैसा कि उफा में हुआ और उसमें कश्मीर का जिक्र ना हो, इतनी बड़ी बात हो, और उसके पीछे कोई विदेश मंत्रालय या विदेश के मामलों के जानकारों की कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो। ऐसा संभव ही नहीं है। इतना बड़ा डिक्लेरेशन अगर हुआ, उसके बाद अगर पाकिस्तान फिर उन टैक्टिक्स पे उतर आया, तो हमें समझना चाहिए कि पाकिस्तानी फौज और लेकिन शीतल, एक महत्वपूर्ण सवाल ये हो जाता है कि ये चरित्र पाकिस्तान का तो काफी दिनों से हम देख रहे हैं और बार बार इस तरह की खबरें सामने आ रही थी कि कुछ भी हो जाए एनएसए लेवल की बातचीत भारत की ओर से की ही जाएगी, लेकिन अचानक क्या हो गया जिसके बाद भारत ने अपने कदम पीछे खींच लिए? जो अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान का स्टैंड क्लियर हुआ। पाकिस्तान ने स्पष्ट, पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें स्पष्ट कहा कि हम भारत के साथ बातचीत तो करेंगे। लौटती हूँ आपके पास। बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, अचानक ऐसा क्या हो गया कि भारत ने अपने पैर पीछे खींच लिए हैं पाकिस्तान के साथ बातचीत से? ऐसा है, हमने से जो पाकिस्तान की तमाम प्रतिक्रियाओं को बहुत गंभीरता से देख रहे थे, हमें तो पूर्ण अंदाजा था कि ये एनएसए की टॉक जो है ये इसको डिरेल करेंगे ही करेंगे। उसका कारण था उफा में जो समझौता हुआ जी, उसमें आतंकवाद का मुद्दा एनएसए के स्तर पर बातचीत करा जाएगा, बस ये लिखा हुआ है आतंकवाद पे। अच्छा, जैसे ही नवाज शरीफ साहब 10 तारीख के बाद पहुंचे, 10 अगस्त के बाद अपने पाकिस्तान पहुंचे, वैसे ही उनकी जो है खूब जड़ाई करी गई मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट द्वारा कि आपने कैसे मान लिया, आपने तो सारे में जो है हिंदुस्तान का जो एजेंडा है वो मान लिया, आपने कहा टेररिज्म पर हम बात करेंगे, आपने कहा मुंबई के जो हमला हुआ था उसमें जो है हम सहयोग देंगे, हम अपनी आवाज का सैंपल देंगे। और अगले ही दिन आपने देखा होगा कि पहला यू टर्न चालू हुआ कि भाई नहीं, हम तो लकड़ी का सैंपल नहीं दे सकते क्योंकि ये है वो है, मतलब बहाना बनाया गया। आगे चलिए, फौरन ही उसके बाद गुरदासपुर में आतंकी हमला होता है, उधमपुर में हमला होता है। उसका कारण ये था कि वो चाहते थे कि भारत को जो उफा में डिप्लोमेटिक कूप जिसको मैं कहता हूँ जो भारत ने हासिल करा उसको कैसे खत्म करा। चलिए चित्रा, शायद हमारे साथ मोहसिन रजा वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से जुड़ चुके हैं। मोहसिन, अब तक आपको ये खबर मिल चुकी होगी कि टॉक्स जो है वार्ता भारत पाकिस्तान के बीच रद्द हो गई है और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का अड़ियल रवैया है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का इस बात पर जोर देना कि पाकिस्तानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हुर्रियत के नेताओं से मिलेंगे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर पाकिस्तान इस कदर क्यों टॉक्स को डिरेल करने पर तुला हुआ था कि भारत को ये फैसला लेना पड़ा? देखिए, भारत जो है बिल्कुल इस मामले पे ज्यादती से काम ले रहा है। इससे पहले भी जब पाकिस्तान से पाकिस्तानी क़यादत इंडिया आती रही है तो वो बाकायदगी से हुर्रियत रहनुमाओं से मिलती रही है। अब इस हुकूमत के दौरान, बीजेपी की हुकूमत के दौरान, मोदी साहब की सरकार में इस बात को जवाब बना के इन्होंने पहले भी डायलॉग को मंसूख किया सेक्रेटरी खारजा की सतह पे, और अब इस मामले को लेकर आज इन्होंने ये फैसला किया है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मीटिंग को कैंसिल किया जाए। तो पाकिस्तान जो है वो किसी भी सूरत में अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। उफा में पाकिस्तान ने एक स्पेस दी थी इंडिया को, क्योंकि पाकिस्तान किसी मामले पे मोहसिन आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ पूर्व विदेश मंत्री बीजेपी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक यशवंत सिन्हा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यशवंत सिन्हा जी, स्वागत है आपका। और जो आप कह रहे थे कि टॉक्स नहीं होने चाहिए, भारत सरकार ने आखिरकार वही फैसला लिया और इसके लिए मजबूर किया पाकिस्तान ने। देखिए, मुझे बहुत सख्त अफसोस है कि मैं सही साबित हुआ। मुझे पता था कि यही होने वाला है और इसीलिए मैं 4 दिन से लगातार अपनी बात कह रहा हूं कि हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी जो दिक्कत की बात है पाकिस्तान के साथ वो ये है कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान जो लिखत में समझौता होता है उस पर भी कायम नहीं रहता है। ओरल की बात तो छोड़ दीजिए, अभी उफा पर में जो समझौता हुआ, जो स्टेटमेंट जारी हुआ, उसकी स्याही भी अभी फीकी नहीं पड़ी होगी और पाकिस्तान बदल गया। तो इसलिए ये पाकिस्तान की आदत रही है और मैं जानता हूं इस आदत को, और इसीलिए मैं कह रहा था कि बातचीत का कोई लाभ नहीं है और बातचीत नहीं होनी चाहिए। और जो डेवलपमेंट्स हुए वो इसी दिशा में ले गए।
लेकिन सना साहब, अगर भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान पर भरोसा किया और उसे मौका देने की कोशिश की ऊफा डिक्लेरेशन के आधार पर, तो आपको नहीं लगता कि इसमें भारत सरकार की गलती उतनी नहीं है? पाकिस्तान की नीयत ही ऐसी रही है, जैसा कि आपने कहा। नहीं, तो हम जब जानते हैं कि इस आदमी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, तो फिर उससे बातचीत बढ़ाने से कोई फायदा है ही नहीं। मेरा बेसिक ऑब्जेक्शन जो है वो इस बात पर है कि हम हर बार पाकिस्तान पर भरोसा कर लेते हैं और फिर वो पाकिस्तान उस भरोसे को तोड़ देता है। तो इसलिए हमें सबक लेनी चाहिए पूर्व के अनुभवों से। पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करना चाहिए और उसको ध्यान में रखकर जो भी स्ट्रैटेजी बनानी है वो बनानी चाहिए। ऐसे में क्या रणनीति हो सकती है? ऐसे में क्या रणनीति हो सकती है? पाकिस्तान मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं अपने इसमें विचारों में कि पाकिस्तान से हमारा क्या लेना देना है। पाकिस्तान अपने स्पेस में रहे, भारत अपने स्पेस में रहेगा। पाकिस्तान से हमारी मुख्य शिकायत यही है कि पाकिस्तान हमारे देश में आतंक फैलाता है, तो हम उसका मुकाबला करें। पाकिस्तान अगर हमारे देश में आतंक फैलाता है तो हम ऐसे उपाय करें कि पाकिस्तान को ये मौका नहीं मिले, और ये पाकिस्तान की खुशामद करने से है, तो हम उसका मुकाबला करें। पाकिस्तान अगर हमारे देश में आतंक फैलाता है तो हम ऐसे उपाय करें कि पाकिस्तान को ये मौका नहीं मिले, और ये पाकिस्तान की खुशामद करने से हम नहीं हासिल कर सकते हैं। ये हमको मजबूती के साथ उस आतंक का मुकाबला करना पड़ेगा, उससे हमको सफलता मिलेगी। पाकिस्तान से बातचीत करने का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। यशवंत सिन्हा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। दरअसल पाकिस्तान का चरित्र ही शुरू से ऐसा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना मौका आज तक, इस शाम तक हमने उसे क्यों दिया? क्योंकि दूसरी तरफ गुरदासपुर, उधम सिंह नगर में अगर हमले हुए थे, उसके तुरंत बाद ये फैसला ले लेती अगर सरकार, तो शायद वो दुरुस्त फैसला होता। अब हम उस पर नहीं आज के दिन जा रहे हैं। मैं अपने अनुभव के आधार पर, मैं विदेश में था, मैं 4 दिन पहले लौट कर आया, और 4 दिन पहले से मैं लगातार कह रहा हूं कि बातचीत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। और आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हम बातचीत किस उद्देश्य से कर रहे थे? इस उद्देश्य से कर रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार हो, बेहतरी आए, इसके लिए कर रहे थे। बिल्कुल। तो अभी क्या जो जितना ड्रामा हुआ है उसका क्या नतीजा निकला कि ठीक इसके उलट दिशा में हम चले गए। दोनों देशों के बीच में जो कटुता है वो और बढ़ गई ना। बिल्कुल। तो इसमें हमको पढ़ना ही नहीं चाहिए था शुरू से। जी यशवंत सिन्हा जी, आपने कहा कि हमारा जो प्रमुख कंसर्न पाकिस्तान के हवाले से है वो ये है कि हम उनकी तरफ से जो आतंकवाद है उस पर कैसे लगाम लगे। तो बिना पाकिस्तान को टेबल पर लाए आतंकवाद का सामना करना, आप हॉट परसूट की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं हॉट परसूट की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे पास उसके बाद भी बहुत सारे उपाय हैं कि हमारी नंबर 1, हमारी सीमा के भीतर पाकिस्तान के आतंकी नहीं घुस पाए, ये इंतजाम हमको करना है। दूसरी बात कि हमारी सीमा के भीतर अगर वो गलती से आ भी जाते हैं तो तुरंत उनको हमको मार गिराना चाहिए। नंबर 3, हमारे देश में उनके जो सहयोगी बनते हैं उनके साथ कड़ाई के साथ हमको पेश आना चाहिए। नंबर 4, ये सब हासिल करने के लिए जो भी इंतजाम करना है उसमें जितना भी पैसा खर्च हो वो हमको करना चाहिए। दूसरे देशों ने करके दिखाया है, और हम इतने 25 साल से हम आतंकवाद झेल रहे हैं, अभी तक हमने क्यों नहीं इसको हासिल किया है? ठीक है जी। यशवंत सिन्हा जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल मैं ले लेती हूं, और ये आखिरी सवाल आपसे मेरा होगा। दरअसल भारत सरकार की ओर से कदम तो उठा लिए गए और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, लेकिन पिछले साल भी अगस्त में हमने देखा था बिल्कुल इसी तरह का कदम भारत सरकार ने उठाया था, और इस बार भी अगस्त का महीना है, हालांकि 1 साल बीत चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप किस तरह का मैसेज देखते हैं, जिस तरह से भारत की ओर से 2 बार बड़े कदम पाकिस्तान को लेकर उठाते हुए वार्ता रद्द की गई है? नहीं, हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके बाद एक डिप्लोमेटिक ब्लिट्सक्रीग करना चाहिए। हमारे मिशंस हैं दुनिया के हर देश में। अभी कुछ दिनों 3-4 हफ्ते में UN जनरल असेंबली की मीटिंग होगी दुनिया भर के
नेता वहां जुटेंगे। भारत को बहुत मजबूती के साथ पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करना चाहिए और कहना चाहिए कि अगर हम पहले के समझौतों को नहीं भी देखते हैं, ऊफा में जो समझौता हुआ उसको भी पाकिस्तान ने उसका उल्लंघन किया, उसकी अवहेलना की और इसलिए बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती है और भविष्य में कभी कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए कि पाकिस्तान को हम टेबल पर लाने का प्रयास करें। चलिए, बहुत शुक्रिया यशवंत सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यशवंत सिन्हा जी ने साफ साफ कह दिया है कि भारत की ओर से कोई भी ऐसी कोशिश नहीं की जानी चाहिए जिससे हम पाकिस्तान को लेकर आगे बढ़े। दरअसल उसका चरित्र ही ऐसा रहा है कि उससे बातचीत का कोई मतलब नहीं रह जाता है। मोहसिन रजा वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोहसिन रजा, दरअसल दिक्कत इस बात की है कि जब भी भारत की ओर से किसी अच्छे दिशा में कदम बढ़ाया जाता है, पाकिस्तान अपनी उन्हीं पुरानी तमाम बातों पर अटक जाता है और उससे आगे बढ़ने को तैयार नहीं। यही वजह है कि अब इस तरह का कदम भारत सरकार की ओर से लिया गया। शीतल, देखें, ऊफा में जो बातचीत हुई थी उसमें पाकिस्तान ने किसी भी मामले पे कोई ऐसी सख्त मौकिफ इख्तियार नहीं किया और इंडिया का जो मौकिफ था वही ज्वाइंट स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करता था, जिसका मतलब था कि पाकिस्तान चाहता है कि किसी भी तरीके से इंडिया के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करे जी और भारत के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाए। लेकिन भारत मुसलसल जो है हर मामले पे जिस तरीके से कंडीशन आयद करता है वो पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं। और आज पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत ने एक मुश्तरका मुलाकात में ये बात तय कर दी कि इंडिया का ये मौक़िफ़ किसी सूरत में तस्लीम नहीं किया जाएगा कि हुर्रियत रहनुमाओं को पाकिस्तान के तो भी सलामती के। आप लोगों का यही अड़ियल रवैया है जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बहुत शुक्रिया मोहसिन रजा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो बड़ी खबर आज की सबसे बड़ी यही है, भारत पाकिस्तान के बीच एनएसए लेवल की जो बातचीत होने वाली थी उस वार्ता को भारत की ओर से रद्द कर दिया गया है। दरअसल हुर्रियत नेताओं से मिलने पर पाकिस्तान अड़ा हुआ था और इसी को देखते हुए ये बड़ा फैसला भारत सरकार ने लिया है।